मेरा स्क्रीन दिख रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट लेक्चर, सोमेश कुमार मल्होत्रा। Yes, sir. Hello. Now the third lecture is on electromagnetic waves. अब waves जो है that is nothing but transporting energy or transmitting information. Mathematically it can be a function of both space and time. Okay. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बिहेव करती हैं व्हेन दे गो थ्रू डाइलेक्ट्रिक लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इट गोज फ्रॉम द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वेदर व्हेन इट गोज थ्रू अ गुड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बिहेव करती हैं उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो पहला केस जो ले रहे हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन अ लॉसी डाइलेक्ट्रिक। ओके, और लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जैसे उस मीडियम से पास करती जाए वैसे वैसे उसका पावर लॉस होता है, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को हम लोग लॉसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और ये जो पावर लॉस होता है दैट इज ड्यू टू द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ द मीडियम। जो मीडियम की कंडक्टिविटी पुअर होने की वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पावर लॉस होता है। ओके, फॉर lossy dielectric medium, we normally take the parameters as the conductivity will be having some value, that means it will be non-zero. Epsilon will be the permittivity will be equal to epsilon r into epsilon naught, where epsilon r is relative permittivity of a medium, epsilon naught is the permittivity of the free space, and mu permeability will be equal to mu r into mu naught, where mu r is the relative permeability of the medium and mu naught is the permeability of the free space. Okay. Now, for the generalization, we consider that the medium is linear, isotropic, homogeneous, okay, and the medium is also charge free. That is rho v equals to 0. Now, taking all these conditions for a lossy dielectric medium, the Maxwell equation will be something like this. तो आपकी पहली मैक्सवेल इक्वेशन थी जो गॉस लॉ थी, जो कहती थी कि डेल डॉट टी इज इक्वल टू रो वी। ओके, नाउ फॉर दिस केस रो वी इज 0, दैट मींस डेल डॉट डी विल बी इक्वल टू 0। If del dot d is equals to 0, while using the constitutive equation, we can also say that del dot vector E equals to 0. Similarly, second equations, that is del dot B equals to 0, can also be replaced as del dot H equals to 0, because B is nothing but mu H. Okay. Now, third equation, as we have derived in the case of a harmonically varying fields, as the EM wave is nothing but a harmonically varying field. Therefore, del cross E in this case will be minus j omega mu vector H. And del cross of H will be sigma plus j omega E into vector E. Okay. Now, these are the four Maxwell equations. Now, taking the curl of third equation, this one, taking the curl of third equation, you will get in del cross E, which is equal to minus j omega mu del cross of H. You are introducing del cross over here and del cross of H here. Expanding this, you will be getting del of E minus del square E equals to minus j omega mu, and in the place of del cross of H, we can place sigma plus omega E epsilon.
in the place of del cross of H from equation 4, you substitute the value, you will get in minus j omega mu sigma plus omega epsilon into vector E. Okay, this will be equal to del square vector E equals to gamma square E, where gamma is nothing but minus j omega mu sigma plus omega epsilon. Gamma square is equal to j omega mu sigma plus j omega epsilon. Okay, where this gamma is nothing but propagation constant. By a similar procedure, we can say that del square H, vector H is gamma square vector H. Okay, both the equations are known as vector Helmholtz equation, or simply vector wave equation. Okay, now this gamma propagation constant, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जो कि कॉम्बिनेशन होती है अल्फा एंड बीटा की, एंड दिस इज गिवन एज गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, वेयर अल्फा इज नथिंग बट एटेन्यूएशन कांस्टेंट and beta is your phase constant. Attenuation constant is simply the measure of the spatial rate of decay of the wave in the medium. Or you can simply say that कि किसी भी मीडियम में जब वेव प्रोपोगेट करती है तो वो पर मीटर कितना डिके कर रही है, दैट इज गिवन बाय एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और इसका यूनिट जो होता है दैट इज नैपर पर मीटर. ओके, नैपर इज अगेन अ यूनिट कि जैसे जैसे वेव ट्रैवल कर रही है और वो उसका मैग्नीट्यूड 1/e टाइम्स होता जा रहा है, देन पर्टिकुलर रिडक्शन इज नोन एज नैपर. ओके, नाउ फेज कांस्टेंट मेजर करता है कि जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से ट्रैवल कर रही है तो वो कितना फेज लैग करती जा रही है. ठीक है, वो वेव कितना फेज चेंज आ रहा है उसके अंदर पर मीटर मूव करने पर, एंड इट इज नॉर्मली गिवन एज रेडियन पर मीटर. ओके, तो दिस एज अ होल इज नोन एज propagation constant, that is gamma, which is equal to alpha plus j beta. Now come over here, the gamma equals to alpha plus j beta. If you square this, gamma square, it will be alpha square minus beta square plus 2j alpha beta, which will be according to the previous one. Gamma square is nothing but j omega mu into sigma plus j omega epsilon. उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगी सिग्मा ओमेगा म्यू j माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इसका ये, इसका रियल पार्ट ये है, एंड इमेजिनरी पार्ट अगर कंपेयर करें तो यू विल बी गेटिंग अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर equals to minus omega square mu epsilon, and 2 alpha beta will be equal to sigma omega mu. Now solving these two equations for alpha, you will be getting alpha equals to omega under root mu e upon 2 in the bracket again a square root 1 plus square of sigma upon omega epsilon minus 1. Similarly, you will be getting beta, which will be equal to omega square root of mu epsilon upon 2 in the bracket square root open 1 plus square of sigma upon omega epsilon minus 1. So for lossy dielectric, these are the parameters. This is the attenuation constant for a lossy dielectric medium. This is the phase constant for a lossy dielectric medium. This shows the behavior, how the electromagnetic wave is behaving while passing through a lossy dielectric medium, how it is attenuating, how phase is changing as it is moving through the medium. Into the derivations for the case of a dielectric and a good conductor.
how will we classify them or differentiate them for EM waves? कि कोई पर्टिकुलर मीडियम इट इज गुड डायलेक्ट्रिक और अ गुड कंडक्टर, ये हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इससे ज़्यादा देखते हैं. लेट अस कंसीडर केस कि किसी भी मीडियम के अंदर अगर कंडक्शन करंट और डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट करंट का रेशियो निकाले, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड का रेशियो निकाले किसी मीडियम के अंदर, देन इट विल बी कंडक्शन करंट कैन बी गिवन एज सिग्मा ई, इसका मैग्नीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी गिवन एज जे ओमेगा वेक्टर डी. वेक्टर डी इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन वेक्टर ई. ओके, इसमें ये दोनों का मैग्नीट्यूड का डिवीजन होना है. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ई कैंसिल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है तो जे आपका रिप्लेस हो जाएगा. तो फाइनली यू विल बी गेटिंग सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन which is equal to some tan theta. This tan theta is nothing but loss tangent of a medium, or this is known as loss. This particular theta angle is known as loss angle of the medium. Now, by this loss tangent or loss angle, we can tell about that a medium is dielectric or good conductor. If sigma is very much greater than omega epsilon, अगर सिग्मा की वैल्यू ओमेगा एप्सिलॉन से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इन दैट केस tan थीटा की वैल्यू काफी हाई होगी. इन दैट केस tan थीटा इज वेरी हाई. दैट मींस इट इज अ गुड कंडक्टर. बट नेचुरल कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर ओमेगा एप्सिलॉन से ज्यादा है तो गुड कंडक्टर होगा ही होगा. ओके, सिमिलरली if sigma is very much less than omega epsilon, in that case the loss tangent is having low value. That means it is a good dielectric. Again, practically conceptually say, अगर simply the conductivity और उसकी वैल्यू कम है ओमेगा एप्सिलॉन से, काफी कम है, तो पता चला डायलेक्ट्रिक ही होगा. ओके, और in the term of loss tangent, loss tangent's value is very much high, that means it's a good conductor. If loss tangent is having very low value, that means it's a dielectric. Okay. Now, consider the case when the plane wave is in a good dielectric. Good dielectric means again sigma is very much less than omega epsilon, or sigma by omega epsilon is very much less than 1. For a good dielectric, ideally, sigma should be almost equal to 0. Epsilon is equal to epsilon naught, mu equals to mu naught, mu r. If you substitute this value in the previous equation of alpha and beta, you will find that alpha comes to 0 and beta comes to equals to omega under root mu epsilon. As you remember, the previous equation alpha was omega under root mu epsilon upon 2 in the bracket, this whole thing. If you substitute sigma upon this value, negligible over here, this whole term becomes 0. Similarly, in the case for beta, it is positive plus 1. That means if you are substituting this as 0, this will convert into 2. 2 will be divided, 2 will be cancelled, and you will be getting beta equals to omega mu under root mu epsilon. Okay, this was for the ideal case. But in the reality, the conductivity is not almost 0. There is some conductivity. So for practical purpose, we can expand this by using the binomial theorem, 1 plus sigma square upon 2 omega square epsilon square, plus there will be some higher values which can be neglected because sigma upon omega epsilon is very much less than 1. Therefore, the higher values can be neglected. You can put this value over there and finally cancel out this one, and you will be getting alpha is equal to sigma upon 2 under root mu by epsilon, which is the more practical
value of alpha in the case of a plane wave which is traveling through a good dielectric. Beta equals to again omega under root mu epsilon by 2 in the bracket again जहाँ अंडर रूट था वहाँ पर मैं ये रख रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें से this is twice, इसमें से ओमेगा अंडर रूट म्यू epsilon इसे कॉमन लेंगी तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, ओके। एंड इसका अगेन मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन करूं तो और हायर टर्म्स को निगलेक्ट करूं तो यू विल बी गेटिंग ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन इन द ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर 8 ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ बीटा in the case of a good dielectric. Okay, so this was a attenuation constant and a phase constant for a good dielectric case. Now we come to the third case, that is a plane wave in a good conductor. Okay, for a good conductor, as we seen before, that sigma was very much greater than the omega epsilon. Conductivity value is very much greater than omega epsilon, or you can say in this case the conduction current will be much more than the displacement current. Okay, mathematically sigma, therefore from this sigma will be sigma upon omega epsilon will be very much greater than 1, very much greater than 1. Okay, now from the previous equations we know that gamma square is equal to j omega mu in the bracket sigma plus j omega epsilon. Okay, now I take out this sigma from this bracket. You will be getting 1 plus j omega epsilon upon sigma. Okay, as we have considered that sigma upon omega epsilon is very much greater than 1, in that case this will be nullified and you will be getting j omega mu sigma. Okay, the gamma square will be equal to this. From this, gamma will be under root of this j omega mu f sigma. Okay, now omega mu sigma is okay. Under root of j is nothing but cos 45 plus j sin 45. By the application of De Morgan's theorem, it will be cos 45 degree plus j sin 45 degree. And we know that the value of cos 45 and sin 45 is nothing but 1 by under root 2. Okay, in that case, you will be getting under root omega mu sigma upon 2 plus j omega under root omega mu sigma by 2. Okay, this is alpha plus j beta. That means in the case of conductor, the equation for attenuation constant as well as the phase constant will be the same. That is under root omega mu sigma by 2. For तो गुड कंडक्टर के केस में एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट, दैट मींस जिस तेजी से एटेन्यूएट वेव करेगी उसी तेजी से उसका फेज चेंज भी होगा किसी भी मीडियम के थ्रू जैसे वो मूव करे। ओके, इसके अलावा जो एक पैरामीटर कंडक्टर के केस में आता है दैट इज स्किन डेप्थ. इट इज डिफाइंड एज द डेप्थ इन विच वेव हैज एटेन्यूएट टू 1 by e or approximately 37% of the original value. Normally metals में होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत तेजी से एटेन्यूएट करती है, therefore वहां पर EM waves only on the surface रहती है, ठीक है। तो that why that particular effect is also known as skin effect. Okay, तो जब आपकी वैल्यू 1 by e टाइम्स हो जाए और 37% रह जाए, ऐसी डेप्थ को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। ओके, अब प्रैक्टिकली जैसे जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम से ट्रेवल करेगी तो जो एटेन्यूएट करेगी दैट विल बी एटेन्यूएटेड बाय e to the power minus alpha x. When the wave is moving in the s direction, it will be attenuating by e to the power minus alpha time. Okay, e to the power minus alpha x. And as the definition is saying that when the value is e to the power minus 1, that particular depth is known as skin depth. So e to the power minus alpha x
अगर इसको मैं e⁻⁻1 से इक्वेट करूं तो अल्फा x विल बी इक्वल टू 1 एंड दैट पर्टिकुलर x is known as skin depth, which is denoted by delta. Alpha delta will be equal to 1. Okay, therefore delta will be simply 1 by alpha. Okay, for the case of conductor, delta will be 1 by alpha. If you put the value of this alpha over here, you will be getting under 2 upon omega mu sigma. So this is the skin depth in the case of conductor. Okay, तो ये वो मतलब कि स्किन डेप्थ देखा जाए तो बेसिकली वो डेप्थ है जहां तक ईएम वेव हमारे लिए यूजफुल है, इट इज यूजफुल. इसके बाद का जो ईएम वेव है मतलब बिलो 37% इट्स नॉट यूजफुल. दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द केस ऑफ कंडक्टर. स्किन डेप्थ कैलकुलेट की जाती है बहुत से ट्रांसमिशन लाइंस की, वेवगाइड्स की. देयरफॉर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द केस ऑफ अ गुड कंडक्टर. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3 मीडियम में देखा, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर. तीनों केस में हम लोगों ने अटेन्यूएशन कांस्टेंट निकाली, फेज कांस्टेंट निकाले. इसमें किसी को कोई डाउट है? सर ये सेकंड यूनिट का है ना सर? हाँ सर ये सेकंड यूनिट का टॉपिक है. ये बेटा आप पहुंच गए हैं 4th यूनिट. थर्ड यूनिट आप मैक्सवेल इक्वेशन आपकी 3rd यूनिट थी. ओके सर. 4th यूनिट नहीं, सॉरी, मैक्सवेल इक्वेशन आपकी 2nd यूनिट थी. ये आपकी 3rd यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैं पूछा हूँ कि इस जो भी आपका वीडियो हुआ इसमें कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, कोई डेरिवेशन में कुछ कंफ्यूजन हो किसी को? नोबडी इज रिस्पोंडिंग. नहीं है, बस ये मान के चल रहा हूँ कि फिर आपका सबको समझ में आ गया. ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, दैट इज रिगार्डिंग इंट्रिंसिक इम्पीडेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मीडियम में ट्रैवल करती है तो मीडियम का अपना एक इम्पीडेंस होता है कि जिसकी वजह से वेव्स को रेजिस्ट करता है. तो वो कैसे डिफाइन होता है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के लिए हम उसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो. इसको देखते हैं. ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट मीडियम्स में देखा था. डाइलेक्ट्रिक, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, गुड कंडक्टर. इसके अलावा उसमें हम लोगों ने अटेन्यूएशन कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी. नाउ उसमें एक पैरामीटर और आता है, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर वेव अटेन्यूएट करती है या फिर उसके अंदर फेज चेंज करती है. ठीक है, तो ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है. ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रेशियो. ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज मीटा. इसको मीटा से डिनोट करते हैं एंड इट इज अ रेशियो ऑफ E and H. ओके, नाउ टू एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकालने के लिए मैं एक
सिंपल सा सिंप्लीफाइड एक इक्वेशन ले रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका ई वाई कंपोनेंट जो है वो टाइम के साथ वैल्यू तो कर ही रहा है, साथ ही साथ उसका वेरिएशन एस डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में ई वाई की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी ई टू द पावर प्लस माइनस गामा एक्स एज इट इज वैरिंग इन द एक्स डायरेक्शन। तो उसके लिए जो एटेन्यूएशन होगा वो भी एस के अलावा होगा, देयरफॉर यहाँ पर मैंने गामा से इसको मल्टीप्लाई किया, फेज कांस्टेंट एटेन्यूएशन हो गया, प्रोपगेशन कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई किया। एंड जो सब टाइम वेरिएशन है, टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है दैट इज डिनोटेड बाय ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ओके, नाउ अगर मैं इसका कर्ल क्रॉस निकालूं, I take the curl of this electric field, simply it will be ax cap, ay cap, az cap upon dabber by dabber x 0 0, क्योंकि जैसे x डायरेक्शन में वैरी कर रहा है तो बाकी जो डिफरेंशियल्स हैं वो जीरोस होंगे, ठीक है। अगेन ओनली ई वाई कंपोनेंट, बाकी सब जीरो होंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी dabber ई वाई बाय dabber x az cap। हाँ, ई वाई को एस के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल बी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ गामा बाहर आएगा, प्लस माइनस गामा, बाकी सिर्फ दूसरे होगा प्लस माइनस गामा ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी ई की पावर प्लस माइनस गामा। ई कुछ नहीं, बस ये क्या है? वेक्टर ई, ठीक है, दिस इज वेक्टर ई, देयरफॉर डेल क्रॉस ऑफ ई इज नथिंग बट प्लस माइनस गामा ई, और डेल क्रॉस ई को आप लिख सकते हैं जे ओमेगा वेक्टर एच। ओके, नाउ जो हमारे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का डेफिनेशन क्या था? इट वाज अ रेशियो ऑफ ई एंड एच, ई एंड एच। तो यहाँ से अगर ई बाय एच निकालें, ई डिवाइडेड बाय एच, तो आपको मिलेगा जे ओमेगा म्यू पर गामा। ओके, गामा की वैल्यू रख दें जो हम प्रीवियसली निकाल चुके हैं, दैट इज जे ओमेगा इनटू अंडर रूट म्यू इनटू अंडर रूट 1 प्लस जे सिग्मा अपॉन ओमेगा वी, दिस अपॉन ये। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो नीटा की जनरल इक्वेशन निकल के आएगी, दैट इज अंडर रूट म्यू ओमेगा जे अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन ई, जे ओमेगा एप्सिलॉन ई। नाउ हमारे तीन केस थे, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, फ्री स्पेस एंड गुड कंडक्टर। जब लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक का केस लेके तब उसको सिग्मा की वैल्यू 0 होगी, एप्सिलॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होगा, म्यू म्यू नॉट म्यू आर होगा। तो इस इक्वेशन में अगर सिग्मा इक्वल टू 0 कर दे तो आपका म्यू ओमेगा जे अपॉन जे ओमेगा एप्सिलॉन बचेगा। इसमें से आप जे ओमेगा कैंसिल कर देंगे तो यू विल गेट नीटा इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन। सिमिलरली फॉर फ्री स्पेस, यहाँ पर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि उसमें रिलेटिव परमिटिविटी हो चाहे रिलेटिव परमिएबिलिटी हो, दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। दीज आर कांस्टेंट्स, देयरफॉर सो कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 120 पाई आती है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 377 ओम। ओके, नाउ फॉर गुड कंडक्टर केस, फॉर गुड कंडक्टर सिग्मा इज वेरी मच ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, जो हम लोग इनिशियली देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू इससे काफी ज्यादा है, तो इसको आप निगलेक्ट कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग म्यू ओमेगा जे अपॉन सिग्मा, म्यू ओमेगा जे अपॉन सिग्मा। ओके, ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा का अंडर रूट और जे को बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे दैट विल बी cos 45 प्लस जे sin 45। ओके, अब इन सब पे बेस एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, फॉर अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जिसका एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.25, ओके, एंड सिग्मा की वैल्यू 10 की पावर -4 सीमेंस पर मीटर। ओके, एंड इस केस में हमें लॉस टेंजेंट निकालना है, अल्फा दैट इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट निकालना है, बीटा दैट इज फेज कांस्टेंट, नीटा दैट इज इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ठीक है। और फॉर अ वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसमें ट्रैवल कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 2.5 मेगाहर्ट्ज है। ओके, कुल मिला के सारे पैरामीटर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये मीडियम कैसा है,
ठीक है, इट्स अ डाइलेक्ट्रिक और अ कंडक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस टेंजेंट निकाल लेते हैं, दैट इज सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁴ सीमेंस पर मीटर हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दी। ओमेगा की जगह पर 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी दैट इज 2.5 मेगाहर्ट्ज, 2.5 into 10⁻⁶ into एप्सिलॉन वो रेट एप्सिलॉन आर into एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2.25 दे रखी है एंड एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट 8.854 into 10⁻⁻12 फैराड/मीटर, which is equal to 0.320। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करके 0.320 होता है। तो दिस इज द वैल्यू विच इज लेस देन 1, देयरफॉर इट्स अ गुड डाइलेक्ट्रिक। और गुड डाइलेक्ट्रिक है तो सारे जितने भी गुड डाइलेक्ट्रिक के रिलेशनशिप है वो यूज होंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अल्फा। अल्फा फॉर द गुड डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट सिग्मा बाय 2 अंडर रूट म्यू बाय एप्सिलॉन, व्हिच इज इक्वल टू 10⁻⁴ बाय 2। सिग्मा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट की मैंने, म्यू की वैल्यू 4 पाई into 10⁻⁷, ठीक है, एंड फाइनली एप्सिलॉन अगेन 2.25 into 8.854 into 10⁻²। ओके, ये सब्स्टिट्यूट करके फाइनली यू विल बी गेटिंग द आंसर। सॉल्व कर देंगे इसको यूजिंग कैलकुलेटर्स, 0.01256 नैपो पर मीटर। नाउ बीटा निकालना है, फेज कांस्टेंट अगेन we'll be using the relationship for the dielectric, that is omega into under root mu e in the bracket 1 plus sigma square upon 8 omega square epsilon square। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f, that is 2 into 3.14 of f is 2.5 megahertz, that is 2.5 into 10⁻⁶। then under root mu e, under root की square root है, mu is 4 pi 10⁻⁷, that is 4 into 3.14 into 10⁻⁷. Again, epsilon is nothing but epsilon r, that is 2.25 into epsilon naught, that is 8.854 into 10⁻12. Okay, and finally 1 plus sigma square upon 8 omega square epsilon square. तो 1 plus 1 by 8 कर लिया, और सिग्मा बाय ओमेगा epsilon जो हम पहले निकाल चुके लॉस टेंजेंट, that is 0.320। तो उन्होंने यहाँ पर 0.320 को हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया। तो दैट इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, ये सारी वैल्यूज ओके, यूजिंग द कैलकुलेटर यू कैलकुलेट, यू विल बी गेटिंग द वैल्यू 0.0796 रेडियंस पर मीटर। दिस इज द वैल्यू फॉर बीटा। नाउ द फाइनल इंट्रिंसिक इंपीडेंस नीटा, अगेन फॉर डाइलेक्ट्रिक केस अभी जो हम लोगों ने निकाला था, it will be under root mu by epsilon in the bracket 1 plus j sigma by omega epsilon। okay, this can be, यहाँ पर अगेन मैंने सारी वैल्यूज रख दी। म्यू की जगह पर 4 पाई into 10⁻⁷, एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन r 2.25 into एप्सिलॉन नॉट, that is 8.854 into 10⁻12 in the bracket 1 plus sigma by omega epsilon is nothing but 0.320। okay, तो you will be getting 254.35 angle 9.09 degree sigma ohms। okay, next question। यहाँ पर एक हमारे पास मेटल भी एल्यूमिनियम मेटल दे रखा, जिसकी परमिएबिलिटी 1 है और परमिटिविटी 1 है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और कंडक्टिविटी इसकी वैल्यू है 3.54 into 10⁻⁷ मोह पर मीटर। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्पिन डेप्थ ऑफ एल्युमिनियम इज 0.01 मिलीमीटर। आपको वो फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसके लिए एल्युमिनियम की स्पिन डेप्थ 0.01 मिलीमीटर होती है। ओके, तो हमें स्पिन डेप्थ का जो फॉर्मूला मालूम है, दैट स्पिन डेप्थ इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट अपॉन 1 अपॉन पाई f म्यू सिग्मा। ओके, तो यहाँ से हम f निकाल सकते हैं, f विल बी equal to 1 upon pi del square mu sigma। ओके, सिंपली यहाँ पर वैल्यूज होते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, डेल्टा की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 0.01 मिलीमीटर, दैट इज 0.01 10⁻3। इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 पाई म्यू की वैल्यू 4 पाई into 10⁻7 सिग्मा दे रखा 3.54 into 10⁻7 मोह पर मीटर, तो 3.54 into 10⁻7 इनको कैलकुलेट सिंपली कैलकुलेटर का यूज करके, तो it will be 71.56
मेगाहर्ट्ज। ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्यूटर एग्जाम में काफ़ी आते हैं कि आपके पास स्पिन डेप्थ दे रखी रहती है और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट डेल्टा, दैट इज स्पिन डेप्थ, gamma, that is propagation constant, and v, that is wave velocity at frequency of 1.6 megahertz, frequency of 1.6 megahertz दे रखी in aluminum, again aluminum का केस here, where conductivity is 38.2 megasiemens per meter and mu r equals to 1. Okay, for this case delta will be again same formula use करेंगे, it will be 1 upon pi f mu sigma, pi की value f is 1.6 into 10 to the power 6, 1.6 megahertz to 1.6 into 10 to the power 6. Sigma is 4 pi into 10 to the power minus 7. Sigma, sorry, mu is 4 pi into 10 to the power minus 7. Sigma equals to 38.2 megasiemens. Megasiemens is 10 to the power 6 over there. Again, using the calculator, you will be calculating this. You will be getting 64.409 micrometers. ठीक है, तो इस केस में स्किन डेप्थ here about 64.4 माइक्रॉन्स के आसपास है। Now, for the case of metal, हमें मालूम है कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 बाय डेल्टा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्किन डेप्थ। ओके, तो स्किन डेप्थ हम निकाल ही चुके हैं, तो रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी 1.5525 into 10 to the power 4। यहाँ यूनिट इसलिए नहीं लिखी क्योंकि मैं दोनों के लिए लिख रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा बोथ के लिए। So now from this you can write the propagation constant, which is alpha plus j beta. So simply 1.5525 into 10 to the power 4 plus j times 1.5525 into 10 to the power 4. This is your entire propagation constant. Okay. Then the last part is that is you have to calculate the wave velocity, which is nothing but omega by beta. Okay. Angular frequency upon the phase constant. Okay. Or 1 upon beta can be replaced by skin depth. Therefore, the formula can be changed to omega into skin depth. Omega हमें मालूम that is 2 pi f into delta. 2 pi की value 3.14, f की value 1.6 into 10 to the power 6, and delta अभी calculate की that is 64.409 micron, that is into 10 to the power minus 6. तो ये सब रख के calculate करेंगे, you will be getting 647.2 millimeter per second. 647.2 meter per second. That is एयर से ज्यादा स्पीड है। ठीक है, ओके, इस वीडियो में किसी को कोई डाउट? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं भाई? क्यों, दया शंकर, हर्षित पटेल, कोई डाउट? हेलो, Hello? Yes, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं? ठीक है, फिर मैं इन दोनों को वीडियो लिंक्स आपको डाल दूंगा उस पर गूगल क्लासरूम में। किस आपको इन टॉपिक्स पे कोई भी डाउट होता है मुझसे बाद में ही पूछ सकते हो। ठीक है, अटेंडेंस के लिए कॉल कर रहा हूँ।